ITA পৰীক্ষা কৰিলে বিজেপিয়ে 4,600 কোটি টকা কৰ দিব লাগিব। কংগ্ৰেছ নেতা অজয় মাকেনৰ বিজেপি কৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ অভিযোগ। কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশৰ সৈতে AICCৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত ভাষণ দি দলৰ কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেনে বিজেপিয়ে আয়কৰ আইন গুৰুতৰভাৱে উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। এই কথিত উলংঘাৰ বাবে আয়কৰ বিভাগে কেশৰ দলৰ পৰা 4,600 কোটি টকাৰো অধিক ধন দাবী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে মাকেনে। শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা অজয় মাকেনে 19 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলটোক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে কৰ সন্ত্ৰাসবাদ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। জয়ৰাম ৰমেশে দাবী কৰে যে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বণ্ড কেলেংকাৰীৰ জৰিয়তে প্ৰিপেইড, পোষ্টপেইড, পোষ্ট ৰেট উৎকোচ আৰু চেল কোম্পানীকে ধৰি বিভিন্ন চেনেল ব্যৱহাৰ কৰি 8,200 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল। লগতে তেওঁ বিজেপিক কৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি সমালোচনা কৰে। কংগ্ৰেছক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো ৰমেশে দৃঢ়তাৰে কয় যে দলটোক ভয় খুৱাব নোৱাৰিব। তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে কংগ্ৰেছে ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত থিয় দি আগন্তুক সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিব। মেকেনে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য সমমান বিৰোধী দলসমূহক আয়কৰ বিভাগে নিৰ্বাচিতভাৱে লক্ষ্য কৰি লৈছে, যাক তেওঁ বিজেপিৰ ফ্ৰণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছে। তেওঁ অভিযোগ কৰে যে বিভাগটোৱে অপ্ৰমাণিত ভিত্তিত পুৰণি ৰিটাৰ্ণ পুনৰ মুকলি কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে পৰিকল্পিতভাৱে অভিযান চলাইছে। আয়কৰ বিভাগে কৰা দাবী সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছে অতি সোনকালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব বুলি মাকেনে উল্লেখ কৰে। শুকুৰবাৰে অজয় মাকেনৰ উদ্ধৃতি দি PTI প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 2024 চনৰ সংকটজনক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আয়কৰ বিভাগে কংগ্ৰেছ দলক 1,823.8 কোটি টকাৰ জাননী প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছ দলক আৰ্থিক চিন্তা বৃদ্ধি কৰিছে। কৰ কৰ্তৃপক্ষই 4 বছৰ ধৰি কৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাটোক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ কৰে দিল্লী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৰ কৰ্তৃপক্ষই অধিক তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা যথেষ্ট আৰু সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণৰ প্ৰাইম ফেচি সংগ্ৰহৰ উদাহৰণ দি এই আবেদন খাৰিজ কৰে। এই 3 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 520 কোটি টকা মূল্যায়ন ফাঁকি যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৰ বিভাগে। এই সকলোবোৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলটোক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে কৰ সন্ত্ৰাসবাদ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে এক সংবাদমেল যোগে। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि where the treasurer of any political party or any other person authorized by the political party in this behalf fails to submit a report under subsection 3, then notwithstanding anything contained in the Income Tax Act, such political party shall not be entitled to any tax relief under this act. तो कोई भी एग्जेम्पशन लेने के लिए इस जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इसके अंदर है उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर कोई भी वायलेशन होती है, जो ट्रेजरर अगर उसको करता है तो उसको एग्जेम्पशन उसकी विड्रॉ हो जाती है। और इसके अंदर जो सेक्शन 29C के अंदर जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा फॉर्म नंबर 24A है। ये दोनों की दोनों चीजें 29C और परफॉर्मा जो फॉर्म 24A है, ये हमने बैकग्राउंड नोट सर्कुलेट किया है, आप लोगों के फोन में अभी तक के आ गया होगा, उसमें दोनों की दोनों चीजें हैं। तो आप लोग अगर इस पे भी ध्यान देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसके अंदर जो मुख्य बहुत बेसिक चीजें मांगी गई हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बताए कि किससे उसको डोनेशन, नाम बताए कि किसने उसको डोनेशन दिया और उसका एड्रेस बताए कि किसने उसका डोनेशन दिया और अमाउंट बताए कितना डोनेशन दिया और ये बताए कि चेक में दिया, RTGS में दिया और 20,000 से ऊपर जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उसका इसमें जिक्र करना होता है। और जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टी देती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो देती है इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पे डालती है। हम लोगों ने पिछले 2 साल में इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट में डाला और जो 2017-18 जिसके आधार पे हमारे
135 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से छीन करके ले गए, हमने वो दोनों सिर्फ एनालिसिस करी। तो ये इस प्रकार से जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर पॉलिटिकल पार्टी का मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का। और जो हमारे सिर्फ 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर बीजेपी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने, मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि, 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली, और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम सब, पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीस जो बीजेपी ने, जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया, 1297, 1297, और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा, 92 लोगों का। Next test report, notice now.